آداب عرض ہے۔ MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ جوش و خروش سے منایا گیا آج آشاڑھی ایکادشی کا تہوار۔ شہر کے سبھی راستے چلے وٹھل رکمنی مندروں کی طرف۔ اسکولی طلباء نے بھی نکالی دنڈیاں اور شہریان کو دیے نیک پیغامات۔ آخرکار طلباء کی طاقت کے آگے مرکزی وزیر تعلیم ہوئے جھکنے پر مجبور، دے دیا اپنے عہدے سے استعفیٰ۔ عوام نے کیا اطمینان کا اظہار۔ معروف قانون داں ایڈوکیٹ نواب پٹیل کی تحریر کردہ 6 قانونی کتابوں کا معزز مہمانوں کے ہاتھوں شاندار اجرا، دانشوروں نے کی ستائش۔ اور ریاستی وزیر صنعت ادے سامنت نے کیے شیندرا بڈکن انڈسٹریل ایریا کے لیے کئی بڑے فیصلے۔ مقامی نوجوانوں کو روزگار کے لیے دی جائے گی ترجیح اور چھوٹے صنعت کاروں کو انڈسٹریل پلاٹس فراہم کرنے کا کیا اعلان۔ خبریں تفصیل سے۔ آشاڑھی ایکادشی کے موقع پر پرتی پنڈھرپور میں بھی عقیدت مندوں کا سیلاب دیکھنے کو ملا، جہاں وٹھو رایا کے درشن کے لیے ان کی بھیڑ امٹ پڑی تھی۔ آشاڑھی ایکادشی کے مقدس موقع پر اورنگ آباد کے پرتی پنڈھرپور کے طور پر مشہور شری وٹھل رکمنی مندر میں آج عقیدت مندوں کا سیلاب دیکھنے کو ملا۔ لاڈلے وٹھو رایا کے درشن کے لیے صبح سویرے سے ہی عقیدت مندوں کی بڑی تعداد مندر پہنچ گئی، جس کے بعد مندر احاطے میں چاروں طرف عقیدت کا ماحول نظر آیا۔ اورنگ آباد کے علاوہ مراٹھواڑہ کے مختلف اضلاع سے وارکری اور عقیدت مند وٹھو رایا کے درشن کے لیے پہنچے۔ صبح سے ہی درشن کے لیے طویل قطاریں لگ گئی تھی۔ عقیدت مندوں کی سہولت کے لیے مندر انتظامیہ کی جانب سے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ پینے کے پانی، قطاروں کی ترتیب اور دیگر ضروری سہولتوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے مندر احاطے میں پولیس کا سخت بندوبست تعینات کیا گیا ہے۔ اس موقع پر عقیدت مندوں نے وٹھل رکمنی کے قدموں میں پرارتھنا کی کہ ریاست میں اس سال بھرپور بارش ہو، کسان خوشحال رہیں اور ہر شخص کی زندگی میں خوشی، امن اور خوشحالی آئے۔ عوامی خدمت کے جذبے سے اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن انتظامیہ نے آج صفائی چیواری وٹھو رایا چیداری نامی منفرد مہم چلائی۔ میونسپل ذرائع سے موصول اطلاع کے مطابق مہاویر چوک سے صبح 10 بجے میئر سمیر راجورکر کے ہاتھوں صفائی دنڈی کا آغاز کیا گیا۔ اس موقع پر اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین انل مکریے، اپوزیشن لیڈر عبدالسمیر ساجد، سٹی امپرومنٹ کمیٹی کے چیئرمین جالندر شینڈکے، کارپوریٹر شیواجی ڈانگے، کارپوریٹر سیما ساڑوے، میونسپل کمشنر امول ایڑگے اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ شعبے کے ڈپٹی کمشنر نند کشور بھومبے سمیت دیگر افسران اور ملازمین بڑی تعداد میں موجود تھے۔ صفائی دنڈی میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ شعبے کے 200 سے زائد صفائی ملازمین، IC ٹیم اور 10 سے زائد گھنٹہ گاڑیوں نے شرکت کی۔ ملازمین نے ہاتھوں میں جھاڑو، پھاوڑے اور صفائی کے دیگر آلات تھام کر بابا پیٹرول پمپ سے چھوٹے پنڈھرپور تک کے راستے کی صفائی کی اور وارکریوں کو صفائی کا پیغام دیا۔ وارکریوں کی بڑی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے راستے سے کچرا جمع کرنے، صفائی سے متعلق عوامی بیداری پیدا کرنے اور وارکریوں کو ضرورت کے مطابق مدد فراہم کرنے کے لیے خصوصی انتظام کیے گئے تھے۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایمبولینس اور دیگر امدادی نظام بھی تیار رکھا گیا تھا۔ اس موقع پر میئر سمیر راجورکر نے کہا کہ میونسپل کمشنر امول ایڑگے کی قیادت میں میونسپل کارپوریشن نے صفائی اور وارکریوں کی خدمت کو جوڑنے والی ایک منفرد اور متاثر کن مہم شروع کی ہے۔ انہوں نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ شعبے کے ساتھ تمام افسران اور ملازمین کی ستائش کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ یہ مہم آئندہ بھی مسلسل جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ وٹھو رایا کے عقیدت مندوں کی خدمت کا موقع ملنا ان کے لیے خوشبختی اور باعث تشکر ہے۔ کریٹو انگلش اسکول سمیت دیگر تعلیمی اداروں میں آشاڑھی ایکادشی کے موقع پر طلباء نے مختلف دنڈیوں کا اہتمام کیا۔ کریٹو انگلش اسکول بیڑ روڈ نیپانی کی جانب سے آشاڑھی ایکادشی کے موقع پر آڑگاؤں میں آشاڑھی دنڈی کے ساتھ صفائی دنڈی کا بھی مشترکہ اہتمام کیا گیا۔ طلباء نے ہاتھوں میں سنسکار، صفائی اور صحت جیسے موضوعات پر مبنی پیغامات والے پلے کارڈز تھامے اور سادھو سنتوں کے ساتھ وٹھل رکمائی کے نام کا جے گھوش کرتے ہوئے خوبصورت ڈنڈی نکالی۔ اس ڈنڈی میں
آڑ گاؤں کے شہریوں نے بھی جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی۔ گاؤں کے لوگوں نے طلباء کے ساتھ قدم سے قدم ملاتے ہوئے روایتی پاولی کھیلی، جبکہ گاؤں کی خواتین نے بھی اسکول کی طالبات کے ساتھ پھگڑی کھیل کر ماحول کو مزید خوشگوار بنا دیا۔ اس ڈنڈی کی خاص بات یہ رہی کہ گاؤں کی معزز شخصیت سوپان راؤ گائکے نے اسکول کے طلباء اور گاؤں والوں کے لیے صابونہ کھچڑی کے پرساد کے انتظام کے لیے ضروری سامان فراہم کروایا۔ بعد ازاں طلباء اور گاؤں والوں نے مل کر پرساد کا لطف اٹھایا۔ ڈنڈی کے دوران طلباء نے ہاتھوں میں صفائی کی اہمیت اجاگر کرنے والے پلے کارڈز تھام کر علاقے میں عوامی بیداری پیدا کی۔ صفائی، ماحولیاتی تحفظ اور سماجی ذمہ داری کا پیغام دیتے ہوئے طلباء نے شہریان سے اپنے اطراف کا ماحول صاف ستھرا رکھنے کی اپیل کی۔ اس موقع پر شیو نلاوڑے، بھارگو نلاوڑے، آرادھیہ ڈولے، پریتی لانڈے، شیوانش نلاوڑے، سوہم گنڈال، سوہم نلاوڑے، شریش ڈھاکنے، ورد ڈھاکنے، سندھیا نلاوڑے، شلوک نلاوڑے، اننیا نلاوڑے، ویشنوی نناورے اور دیگر طلباء بھی موجود تھے، جنہوں نے اس ڈنڈی میں جوش و خروش سے حصہ لیا۔ اس سرگرمی کے ذریعے طلباء میں صفائی کے تعلق سے بیداری پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ اسی طرح تعلقہ سلوڑ کے ساوکھیڑا اور امبئی گاؤں کی ضلع پریشد اسکولوں میں مذہبی عقیدت، ماحولیاتی تحفظ اور سماجی بیداری کو فروغ دینے کے لیے مختلف پروگرامز کا انعقاد کیا گیا۔ ننھے وارکریوں کی ڈنڈی، وٹھل نام کے نعرے، شجرکاری کا پیغام اور سماجی شعور سے بھرپور سرگرمیوں نے دونوں دیہات کو روحانی اور پرجوش ماحول میں رنگ دیا۔ ڈنڈی میں شامل طلباء نے روایتی لباس زیب تن کر کے گیانوبا، ماؤلی، تکارام کے نعروں کے ساتھ پورے گاؤں میں شاندار ڈنڈی نکالی۔ اس موقع پر وٹھل ڈنڈی، شجر ڈنڈی، ساکشر بھارت گرنتھ ڈنڈی، بال شادی کی روک تھام اور نشہ مکتی سے متعلق بیداری مہم بھی چلائی گئی۔ نارائن سابڑے نے طلباء اور دیہاتیوں کو کم عمری کی شادی کے نقصانات اور نشے سے پاک معاشرے کی اہمیت پر تفصیلی رہنمائی دی۔ پروگرام میں اسکول کے اساتذہ، عملہ، آنگن واڑی کارکنان، آشا ورکرز اور بڑی تعداد میں دیہاتی شریک ہوئے۔ ادھر امبئی کی ضلع پریشد مرکزی پرائمری اسکول میں بھی آشاڑھی ایکادشی کے موقع پر بال وارکری ڈنڈی اور ورکش ڈنڈی کا اہتمام کیا گیا۔ طلباء، اساتذہ اور گاؤں والوں نے جوش و خروش سے شرکت کرتے ہوئے درخت لگائے اور ان کی حفاظت کا پیغام عام کیا۔ بھجن منڈلی، ماؤں اور بہنوں کی موجودگی نے تقریب کو مزید روحانی اور پروقار بنا دیا۔ آشاڑھی ایکادشی کے موقع پر ناندیڑ اور مروم میں اسکولی طلباء کی جانب سے نکالی گئی ڈنڈی اور تعلیم کی واری نے عقیدت کے ساتھ علم، ثقافت اور سماجی اقدار کا پیغام عام کیا۔ ننھے بچوں کی روایتی پوشاک، ٹال مردنگ کی گونج اور گیانوبا تکارام کے نعروں سے دونوں شہروں کا ماحول بھکتی میں ڈوب گیا۔ اس ڈنڈی میں طلباء نے مختلف روایتی اور ثقافتی لباس زیب تن کیے تھے۔ کسی بچے کے سر پر تلسی کا ورنداون تھا تو کسی کے ہاتھ میں بھگوا پرچم، جبکہ کئی طلباء نے گلے میں ٹال مردنگ لیے وٹھل نام کا جاپ کرتے ہوئے ڈنڈی میں شرکت کی۔ طلباء نے ہاتھوں میں سماجی بیداری کا پیغام دینے والے مختلف پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے۔ ننھے بچوں کے رنگن اور روایتی انداز نے ناندیڑ کے شہریوں کی خاص توجہ حاصل کی۔ اس دوران بچوں کی جانب سے کیے گئے رنگن نے بھی شہریوں کے دل جیت لیے۔ اس موقع پر اسکول کے اساتذہ نے کہا کہ تعلیم کی واری کے ذریعے طلباء میں مہاراشٹر اور ملک کی روایتی ثقافت، تہذیب اور اقدار کو فروغ دینے کا پیغام دیا گیا ہے۔ اسی طرح مروم کی ضلع پریشد گرلز اسکول میں بھی آشاڑھی ایکادشی کے موقع پر گرنتھ ڈنڈی کا شاندار انعقاد کیا گیا۔ اس ڈنڈی کے ذریعے طلباء نے علم، وارکری، روایت اور مہاراشٹر کی ثقافت کا خوبصورت پیغام شہریوں تک پہنچایا۔ گرنتھ ڈنڈی کی خاص بات اسکول کے ننھے طلباء کی سنتوں اور وارکریوں کی ویش بھوشا تھی۔ بچوں نے چھترپتی شیواجی مہاراج، سنت گیانیشور، سنت تکارام، سنت جنابائی اور سنت مکتابائی سمیت مختلف سنتوں کا روپ دھارا تھا۔ ہاتھوں میں ٹال مردنگ، سروں پر تلسی کا ورنداون اور زبان پر گیانوبا تکارام کا گجر لیے یہ ننھے وارکری سب کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ وکست بھارت 2047 کی طرز پر AMC انتظامیہ نے شہر کی ہمہ جہت ترقی کے لیے سٹی ٹرانسفارمیشن یونٹ قائم کیا ہے، جس کے تحت شہر کی ترقی کا روڈ میپ تیار کیا گیا ہے۔ اسی ضمن میں مترا ادارے کے ذمہ داران اور میونسپل عہدیداران و افسران کی ایک اہم میٹنگ میئر سمیر راجورکر کی صدارت میں گزشتہ روز منعقد کی گئی۔
म्यूनसिपल ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक महावीर चौक से सुबह 10 बजे मेयर समीर राजूरकर के हाथों सफाई दिंडी का आगाज़ किया गया। इस मौके पर स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अनिल मकरिए, अपोजिशन लीडर अब्दुल समीर साजिद, सिटी इम्प्रूवमेंट कमेटी के चेयरमैन जालिंदर शेंडके, कारपोरेटर शिवाजी डांगे, कारपोरेटर सीमा साड़वे, म्यूनसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट शोबे के डिप्टी कमिश्नर नंदकिशोर भोंबे समेत दीगर अफसरान और मुलाजमीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। सफाई दिंडी में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट शोबे के 200 से ज़ायद सफाई मुलाजमीन, आईसी टीम और 10 से ज़ायद घंटा गाड़ियों ने शिरकत की। मुलाजमीन ने हाथों में झाड़ू, फावड़े और सफाई के दीगर आलात थाम कर बाबा पेट्रोल पंप से छोटे पंढरपुर तक के रास्ते की सफाई की और वारकरियों को सफाई का पैगाम दिया। वारकरियों की बड़ी तादाद को मद्देनज़र रखते हुए रास्ते से कचरा जमा करने, सफाई से मुताल्लिक़ अवामी बेदारी पैदा करने और वारकरियों को ज़रूरत के मुताबिक मदद फराहम करने के लिए खुसूसी इंतज़ाम किए गए थे। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए एम्बुलेंस और दीगर इमदादी निज़ाम भी तैयार रखा गया था। इस मौके पर मेयर समीर राजूरकर ने कहा कि म्यूनसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे की क़यादत में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने सफाई और वारकरियों की खिदमत को जोड़ने वाली एक मुनफरिद और मुतासिर कुन मुहिम शुरू की है। उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट शोबे के साथ तमाम अफसरान और मुलाजमीन की सताइश करते हुए उम्मीद जाहिर की कि ये मुहिम आइंदा भी मुसलसिल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि विठोराया के अक़ीदतमंदों की खिदमत का मौका मिलना उनके लिए खुशबख्ती और बायसे तशक्कुर है। नीट पेपर लीक मामले पर करोड़ों तलबा ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज शुरू किया था और मरकज़ी वज़ीर तालीम से अपने ओहदे का इस्तीफ़ा मांगा था। इन तलबा की ताकत के आगे आखिरकार मरकज़ी वज़ीर तालीम झुक गए और उन्होंने अपने ओहदे का इस्तीफ़ा दे दिया, जिसके बाद तलबा के सरपरस्तों और शहरियान ने इत्मीनान का इजहार किया है। नीट पेपर लीक मामले पर जारहाना रुख इख्तियार करते हुए करोड़ों तलबा, शहरियान और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े के मुतालबे को लेकर बड़ा एहतजाज किया था। कई दिनों से जारी मुतालबे के बाद बिलाखिर आज मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। इस मौके पर करोड़ों अवाम कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके के वालिदैन अपने जज्बात पर काबू न रख सके और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। आइए जानते हैं उनके तासुरात। वडील म्हणून त्यांनी जे मूवमेंट चालू केली आणि त्याच्या पहिल्या मूवमेंटला आणि ते स्वतःसाठी या मूवमेंटमध्ये काहीच नाही, त्यांना हे इतरांसाठी दुसऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी केले त्यांनी। त्याच्या मूवमेंटला यश आला, त्यांनी जे परिश्रम घेतले त्याला यश आला, त्याविषयी मला एक त्याचा वडील म्हणून गर्व वाटतो। तर त्यांनी राजकारणात जाऊ नये हे मला वाटतं, माझी प्रामाणिक इच्छा आहे की त्यांनी राजकारणात जाऊ नये, हे सामाजिक मूवमेंट अशा चालू ठेवाव्यात आणि देशासाठी चांगलं काम करावं। त्या सल्ला त्यांना काहीच नाही देणार मी की तू राजकारणात जाऊ नको, एवढा सल्ला मी त्यांना देणार आहे। सर हे श्रेय सर्वांचंच आहे। तो पहिल्या 6 तारखेला जेव्हा विमानतळावर दिल्लीच्या उतरला त्या दिवशी सुद्धा सोनम वांगचुकजी त्याच्यासोबत होते, तिथे आलेले होते त्या दिवशी। आणि त्याच्यानंतर पुढे जाऊन त्यांनी जे उपोषण चालू केले, 26 दिवस उपोषण सोनम सरांनी केले, हा सर्वात मोठा त्याग आहे त्यांचा या चळवळीसाठी। नाहीतर खरं म्हणजे त्यांच्या जीवावर बेतलेला विषय होता। त्यांनी जर ते उपोषण नसतं सोडलं तर ते कदाचित त्यांचा मृत्यू झाला असता। त्याच्यामध्ये त्यांचं खूप मोठं या चळवळीमध्ये योगदान आहे, हे नाकारता येणार नाही। आणि ते तसंच बाकी जे कोणी सोशल वर्कर आहेत आणि त्या संघटनेशी त्याच्या जोडलेले जो कोणी विद्यार्थी आहेत त्यांनी सुद्धा खूप चिकाटीने ते लावून धरलं आणि त्याला साथ दिली। त्याच्यामध्ये एकट्या अभिजितचं काहीच नाही आहे, या सर्वांचा एक कंबाईन इफेक्ट आहे तो। आई म्हणून खूप आनंद वाटायला लागला। आज त्याच्या हाताला यश आलं, त्यांनी पहिलंच आंदोलन एवढं मोठं उभा केलं, त्याच्या हाताला यश आलं तर खूप आनंद वाटायला लागला। आई म्हणून आता बघू, त्याला विचारू तो काय करतो काही नाही। आता मला तर काही सांगता येणार नाही ना, सर्व त्याच्यावरच राहील ना। भीती फार होती ना, भीती फार वाटायची। तो एखाद्या वेळेस स्टेजवर नाही दिसला की पोरांना म्हणायचं अरे तो स्टेजवर नाही दिसत आहे, लक्ष ठेवा, काही झालं तर आम्ही इकडं काय करणार, तर नाही काकू तो आहे, तो झोपलेला आहे। मग पोरांनी जेव्हा व्हिडिओ कॉल दाखवला की तेव्हा बरं वाटायचं कि तो स्टेजवर आहे म्हणून। मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़ा पर साबिक़ MP वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर इम्तियाज़ जलील के क्या तासुरात हैं, ये जानने के लिए हमने उनसे बात की। धर्मेंद्र चले गए हैं, अब नरेंद्र की बारी है। बहुत खुशी है कि देश के नौजवानों ने वो काम करके दिखाया है
जिस के बारे में लोग सोचते थे कि ऐसा हो सकता है क्या करके। पिछले 10-12 सालों के अंदर जो भी कामयाबी मिली होगी भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को, वो एक ही इस हार में वो पूरा धुल चुका है। और कम से कम अब लोग खड़े रह रहे हैं। नौजवान तबका जो है वो हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, वो समझने लगा है। और मैं समझता हूँ एक टर्निंग पॉइंट है ये कि इस मुल्क के अंदर अकाउंटेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी था। उसमें बेकसूर लोग मर रहे हैं, नौजवान बच्चों को नौकरियां नहीं है, पेपर फूट रहा है, लेकिन उसका ज़िम्मेदार कोई नहीं है। तो ऐसे हालात के अंदर ये जो बच्चों ने लाठी डंडे खाने के बाद भी वहाँ पर डटे रहे, तो उसी का नतीजा है आज उन्हें ये कामयाबी मिली है। और मैं समझता हूँ कि ये यहाँ से इंशाअल्लाह नरेंद्र मोदी की शिकस्त की शुरुआत हो चुकी है। रेजिग्नेशन इसीलिए दिया गया है कि वो जानते थे कि उनके हाथ से एक बहुत बड़ी गलती हुई है करके। और नौजवान बच्चे भी जो अपनी मांगे रख रहे थे वो कोई गलत मांगे नहीं थी। उसमें कई सालों की मेहनत लगती है नीट का एग्ज़ाम पास करने के लिए या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पास करने के लिए, और ऐसे हालात के अंदर पेपर लीक हो जाना और उसका कोई ज़िम्मेदार नहीं, नीचे के छोटे मोटे कोई अधिकारियों को है तो आपने सस्पेंड कर देना, उन्हें जेल में भिजा देना करके। सही मानों में अगर देखा जाए तो सिर्फ इनका सस्पेंशन नहीं होना चाहिए था। अगर इस मुल्क के अंदर इंसाफ रहता तो जो अधिकारी जेल के अंदर है उन्हीं अधिकारियों के साथ तिहाड़ जेल के अंदर धर्मेंद्र प्रधान भी रहना चाहिए था। और जो ये हुकूमत इन लड़कों को जिस तरीक़े से जो रवैया इख्तियार किए हुए थे कि मानो वो कोई दहशतगर्द है, जिस तरीक़े से उन्हें मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, लड़कियों के साथ जो बदतमीज़ी की जा रही थी, वो सब देखते हुए एक बात समझ में आती है कि हाँ, पूरी हुकूमत ने है तो ये नौजवान बच्चों से माफ़ी मांगनी चाहिए। शजकारी हफ्ते के तहत गुज़िश्ता रोज़ भीमनगर हेल्थ सेंटर के अहाते में शजकारी की गई और आवाम को माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम दिया गया। भीमनगर शहरी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मुनक़िदा शजकारी प्रोग्राम में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी कमिश्नर नंदकिशोर भोंबे, गार्डन सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विजय पाटिल, कॉरपोरेटर प्रेमलता दाभाड़े, करुणा जाधव और साबिक़ कॉरपोरेटर मिलिंद दाभाड़े ने मुख्तलिफ़ अक़साम के पौधे लगाए। इस मौके पर मुक़र्रिरीन ने कहा कि माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ और दरख्तों की हिफाजत हर शहरी की समाजी ज़िम्मेदारी है। प्रोग्राम में हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर वैशाली मुदगड़कर समेत हेल्थ सेंटर के तिब्बी और इंतज़ामी अमले ने भी शिरकत की और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाकर उनकी मुनासिब देखभाल करने का अज़्म किया। मारूफ ख़ानुनदां एडवोकेट नवाब पटेल की तहरीर करदा 6 क़ानूनी किताबों का मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के हाथों आज इजरा किया गया, जिसके लिए एक तकरीब बैतुल यतीम के हॉल में आज मुनक़िद की गई। इस सिलसिले में इदारे बैतुल यतीम के हॉल में एक पुरवक़ार तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब की सदारत अमीर शरीयत दारुल ख़ज़ा व शरई खिदमात औरंगाबाद के सरबराह मुफ्ती सैयद इमामुद्दीन अली मदनी ने की। तकरीब में साई की डायरेक्टर मोनिका घुगे, म्यूनसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे, सुप्रीम कोर्ट के वकील एडवोकेट SS क़ाज़ी और महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी के चेयरमैन हसीन अख्तर ने बतौर मेहमानाने ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब के दौरान एडवोकेट नवाब पटेल की तहरीर करदा क़ानून बराए महाराष्ट्र म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, क़ानूनी विरासत, घरेलू तनाज़ात से ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़, फैमिली कोर्ट, क़ानून बराए क़ज़ात, ख़ानदानी तनाज़ात और उनका हल समेत 6 किताबों का बाकायदा इजरा मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के हाथों किया गया। इस मौके पर मुक़र्रिरीन ने कहा कि आम शहरियों में क़ानूनी शऊर पैदा करना वक्त की अहम ज़रूरत है। बेशतर अफराद क़वानीन से नावाकिफ़ होने के बास अपने हुकूक़ से महरूम रह जाते हैं या मामूली नौइयत के क़ानूनी मामलात भी पेचीदा सूरत इख्तियार कर लेते हैं। ऐसे में मुख्तलिफ़ अहम क़वानीन को आसान ज़बान में किताबी शक्ल में पेश करना एक काबिल क़द्र अवामी खिदमत है। तकरीब में मुख्तलिफ़ शोबों में नुमाया खिदमत अंजाम देने वाली शख्सियात को भी एजाज़ात से नवाजा गया, जिनमें MBPC के रुकन वसंतराव साड़ुंके, क्लर्क की हैसियत से मुलाजमत का आगाज़ करते हुए जज के ओहदे तक पहुँचने वाले गोरख चौहान, नौमुंतखब कारपोरेटर व साबिक़ मेयर रशीद खान मामू, सदर बल्दिया कन्नड़ फरहीन बेगम और साबिक़ कारपोरेटर मोहसिन अहमद खान शामिल थे। तकरीब को कामयाब बनाने में दारुल ख़ज़ा व शरई खिदमत इदारे के ज़िम्मेदारान एडवोकेट सज्जाद पटेल और सादिया बेगम नवाब पटेल ने अहम किरदार अदा किया। तकरीब में शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में शहरी शरीक हुए। शुरका ने एडवोकेट नवाब पटेल को किताबों की इशाअत पर मुबारकबाद पेश करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि वो मुस्तकबिल में भी इसी तरह क़ानूनी रहनुमाई,
اور عوامی خدمت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے عام لوگوں کو ان کے حقوق اور قانونی مسائل کے حل کے سلسلے میں رہنمائی کرتے رہیں گے۔ آج ایڈوکیٹ ڈاکٹر شیخ نواب احمد نواب پٹیل ان کی جیونی اور ان کے विधिक पुस्तकों का सामूहिक विमोचन तथा सत्कार मूर्ति का सत्कार समारंभ यहाँ पे रखा गया है। इस समारंभ में अध्यक्ष मुफ्ती सैयद इमामुद्दीन आले मदनी, व्यासपीठ पे उपस्थित प्रमुख अतिथि महोदय, हमारे महानगर पालिका के ज्येष्ठ नगर सेवक और मार्गदर्शक माननीय अब्दुल रशीद खान मामू जी, व्यासपीठ पे उपस्थित जिनका अभी मैंने सत्कार किया कन्नड़ की नगराध्यक्षा मैडम, व्यासपीठ पे उपस्थित सारे सीनियर एडवोकेट्स, हाई कोर्ट और अदर कोर्ट्स में प्रैक्टिस करने वाले सारे सीनियर एडवोकेट्स, यहाँ पे उपस्थित सारे उपस्थित लोग, सबका मैं कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। और इस प्रोग्राम में मुझे रशीद मामू साहब ने और एडवोकेट नवाब पटेल जी ने आमंत्रित किया, इसीलिए मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ। आज हमने बहुत सारे पुस्तकों का किताबों का विमोचन भी किया है और विमोचन में एडवोकेट नवाब पटेल उनकी जो जीवनी का भी एक युवकों के लिए एक प्रेरणा रहेगा, उस पुस्तक का भी हमने विमोचन किया है। और बहुत सारे पुस्तकें, बहुत सारी किताबें उन्होंने कानून समझाने के लिए, कानून सिंपल भाषा में, सीधी भाषा में समझाने के लिए बहुत सारे बुक लिख के एक सामाजिक सेवा उन्होंने की है। कानून समझने में थोड़ा सा हमें कठिन लगता है, लेकिन अगर वो सीधी भाषा में लिखा जाए तो वो लोगों के लिए, कानून तो वैसे लोगों के लिए है, कानून लोगों ने फॉलो करना चाहिए, लेकिन उन्हें समझने के लिए वो सीधी बात में लिखना भी चाहिए। वो बहुत बड़ा काम एडवोकेट नवाब पटेल जी ने किया है। उन्होंने म्यूनसिपल एक्ट हो, बाकी कानून हो, वो सिंपल भाषा में, उर्दू भाषा में इसमें ट्रांसलेशन और इसका मतलब और उसके प्रति जो कुछ भाव है वो उन्होंने लिखने का प्रयास किया है। उनका जो ये बुक है, उस बुक के विमोचन पर मैं उन्हें बधाई देता हूँ, जिन्होंने इस बुक में उनके ऊपर लेख लिखे हैं। उनका जो पूरा कार्य जो हुआ है उस कार्य को उजागर इस बुक में किया है। इस बुक के विमोचन के दिन मैं एडवोकेट नवाब पटेल जी को, इस पुस्तक की लेखक हरलीन कौर जी और सारे जिन्होंने इस पुस्तक बनाने में, किताब बनाने में योगदान दिया है, सारों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ये बुक तरुण पीढ़ी के लिए, युवक पीढ़ी के लिए एक प्रेरणादायक रहेगा। और ये बताते हुए ये भी मैं एक आप सबसे आह्वान करना चाहूँगा कि जैसे एडवोकेट नवाब पटेल जी उनका जीवन है, जैसे यहाँ पे व्यासपीठ पे उपस्थित सारे सीनियर एडवोकेट्स हैं उनका जीवन है, जैसे हमारे ज्येष्ठ नगर सेवक रशीद मामू जी उनका जीवन है, कन्नड़ की नगराध्यक्षा मैडम उनका जीवन है। सब ने उनके जीवन में मेहनत करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं और शिक्षा के प्रति, शिक्षा लेने के बाद ही वो इस पोजीशन तक पहुँचे हैं। तो सब लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, वो सारी नई चीज़ें सीखें। इसके लिए उन्हें शिक्षा के माध्यम से आप सब लोग सक्षम कीजिए, एक मेरा आपको आह्वान रहेगा। और उसी के साथ एक देश का सुजान नागरिक होने के नाते जो हमारी ड्यूटीज है, जो हमारा कर्तव्य है, वो निभाने का भी हम हर रोज़ हमारे ध्यान में रखें। जैसे कॉरपोरेशन के तरफ से स्वच्छ शहर रखने के लिए बहुत प्रयास किया जाता है, हमारे सफाई कामगार दिन रात उसके लिए मेहनत लेते हैं, तो उनको भी आप मदद करें। अपना जो कचरा है वो घंटा गाड़ी में ही डालें, रास्ते पे कचरा मत डालिए। प्लास्टिक बंदी पे हम बोलते हैं, प्लास्टिक बंदी पे हम काम करते, तो प्लास्टिक का यूज ही मत कीजिए। और जितना पॉसिबल है उतना कचरा हम कम करेंगे, कचरा घंटा गाड़ी में डालेंगे तो हमारा परिसर, हमारा शहर स्वच्छ रहेगा। और स्वच्छता में अच्छी जो हमें सेहत भी हमारी है, सेहत भी अच्छी रहेगी। तो स्वच्छता बनाए रखिए। कॉरपोरेशन का जो भी सहकार्य जिस मार्ग से आप कर सकते हैं उस मार्ग से रेगुलरली टैक्स भरना होगा, या एक सुजान नागरिक के वास्ते सारे कर्तव्यों का पालन पूरी जगह पे करना होगा। तो ये चीज़ें आप कीजिए, ये एक मेरी गिनती आपसे रहेगी। और जैसे मैंने पहले बोला, वैसे शिक्षा के माध्यम से ही हम हमारे आने वाली पीढ़ी को सक्षम कर सकते हैं। पहले हमारी 26 किताबें पब्लिश हो चुकी, आज 6 किताबें पब्लिश हो रही। ये 6 में 3 हिंदी की है और 3 उर्दू की है। इसमें जो है तो कॉरपोरेशन एक्ट उर्दू में कहीं भी नहीं है पूरे महाराष्ट्र में, वो अपने बनाए। इसके बाद में जो है तो एक है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो उर्दू में कहीं भी नहीं है अवेलेबल पूरे इंडिया में, उसको हमने उर्दू में बनाए।
एक है फैमिली कोर्ट एक्ट। फैमिली कोर्ट एक्ट के अंदर जो है तो हिंदी में बनाया हमने वो, ताकि पूरे इंडिया में चल सके। और फैमिली काउंसलिंग एक है, यानी जो आपस में तनाज़ात होते हैं उसको आपस में बैठ के कैसे समझाना, उसके लिए जो है तो फैमिली काउंसलिंग एक्ट बना है। ऐसे 3 उर्दू में है और 3 हिंदी में है, लेकिन उर्दू निकालने के बाद में कोई ख़रीदता नहीं उसको, ये हमारे लिए मुश्किल है। इसलिए हिंदी रही तो कम से कम दूसरे लोग खरीद लेंगे तो ये फ्री में चल जाएगा। किसी से कोई इमदाद नहीं है, बल्कि उर्दू का कोई ख़रीदता भी नहीं, मराठी के ख़रीदे जाते बिकते। मेरे पास में जो इसके पहले 26 किताबें पब्लिश किया, तो 26 में से 6 किताबें उर्दू में हैं और 20 किताबें मराठी में है। मराठी की किताब के डबल एडिशन हो गए, उर्दू किताबें जैसी थी वैसी थी, जो फ्री में तकसीम की हमने वही तकसीम हुई, खरीदते नहीं कोई जल्दी। आवाम को तो पूरा फ़ायदा ही फ़ायदा है। उनको महापालिका का कानून क्या है समझ में आएगा, उनको फैमिली कोर्ट क्या है समझ में आएगा, उनको आपस में बैठ के काउंसलिंग कैसे करना, कोर्ट में जाए बगैर हमारे मसले कैसे हल होंगे, ये कैसे तय करना, ये सब चीज़ें जो है समझ में आएंगी। शेख नवाब अहमद वल्द शेख मोहम्मद, और मुझे नवाब पटेल इस नाम से जाना जाता है। मैं नवाब पटेल साहब को उनकी किताबों की इस इजरा के मौके पर मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद ज़ाहिर करता हूँ कि वो इनका ऐसा ही काम करते रहे। ख़ास बात रही कि उन्होंने उर्दू में कुछ किताबें शाये की। मैं बहैसियत चेयरमैन महाराष्ट्र स्टेट उर्दू एकेडमी उनको मुबारकबाद देता हूँ और मुमकिन होगा कि मैं अपनी तरफ से जो कोशिश हो एकेडमी की तरफ से मैं इंशाल्लाह उसको भरपूर करूँगा। देखिए, हुकूमत की पॉलिसी है और हमारी स्कीमात है कि नए नए मुख्तलिफ़ मौज़ू पर हम सेमिनार लें। आजकल डिजिटल दौर है, उसी दौर के हिसाब से मुनासिबत से हमने ये प्रोग्राम तय किए थे। इसी तरह हम आइंदा भी जैसा दूसरे अज़ला में ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं, इससे उर्दू को फ़रोग़ होता और नौजवान नस्ल में एक तरग़ीब अमल में आती है। औरंगाबाद में आनजहानी बाला साहब ठाकरे के नाम से मराठी तरक्की सेंटर कायम किया जाएगा। ये इत्तला रियासती वज़ीर सनत उदय सामंत ने दी है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट पर 10 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। औरंगाबाद शहर में मुनक़िदा मराठी ज़बान महकमे की जायज़ा मीटिंग और अदीबों से गुफ्तगू के प्रोग्राम में रियासती वज़ीर उदय सामंत ने कहा कि मराठी ज़बान की असल तरबियत घर से शुरू होनी चाहिए और बच्चों को मम्मी पापा की बजाय आई बाबा कहना सिखाना चाहिए। उन्होंने ऐलान किया कि शहर में बाला साहब ठाकरे के नाम से 10 करोड़ रुपये की लागत से मराठी ज़बान तरक्की मरकज़ कायम किया जाएगा। इसके अलावा हर ज़िले में मराठी ज़बान का अलहदा दफ्तर और ऑफिसर तैनात किए जाएंगे, जबकि किताबों का गांव, शायरी का गांव, नौजवान ख़वातीन और बच्चों के अदबी इजलास जैसे मंसूबों को भी फ़रोग़ दिया जाएगा। देशातलं पहिलं मातृभाषेचं इंजिनिअरिंग करिक्युलम अभ्यासक्रम हा माझ्या माध्यमातून तयार झाला आणि आज पिंपरी चिंचवडमध्ये मराठी भाषेतनं इंजिनिअरिंगची पदवी घेतली जाते असं इंजिनिअरिंग कॉलेज हे पिंपरी चिंचवडमध्ये सुरू आहे। आणि म्हणून सगळं कुठेतरी एकत्र आलं पाहिजे, असं एक केंद्र बनलं पाहिजे। आणि म्हणून महाराष्ट्र शासनानं काही निर्णय घेतले, त्याची घोषणा मी विधानसभेमध्ये केली। आपण अनेकांनी ऐकलं असेल नसेल मला माहीत नाही, परंतु आज छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आल्यानंतर त्याची घोषणा करणं हे माझं मी कर्तव्य समजतो। म्हणून मी तुम्हाला सांगितले तुमच्या सगळ्या अपेक्षा एका गोष्टीनं पूर्ण होणार आहेत आणि ते हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे मराठी विकास केंद्र हे छत्रपती संभाजीनगरचं जिल्ह्याचं मराठी विकास केंद्र हे 10 कोटी रुपये खर्च करून आम्ही संभाजीनगरला उभारण्याचा निर्णय घेतलेला। या निर्णयामुळे ज्यावेळी हे केंद्र सुरू होईल म्हणजे मराठी भाषेचा विभाग हा वेगळा आहे, परंतु हे जे केंद्र आहे या केंद्रामध्ये मगाशी जसं आपण सांगितलं की इथं देखील परप्रांतीय भरपूर आहेत, त्यांना मराठी शिकवलं पाहिजे। मुलांना वाचण्यासाठी आवश्यक ते ग्रंथालय चांगल्या पद्धतीने निर्माण केलं पाहिजे, पुस्तकं चांगली आणली पाहिजे, लेखनाच्या परीक्षा घेतल्या पाहिजेत, कवितांच्या परीक्षा घेतल्या पाहिजेत। हे माध्यम जे आहे हे जिल्हा मराठी विकास केंद्राकडनं अतिशय चांगल्या पद्धतीने होऊ शकतं आणि याचं सगळं या सगळ्या गोष्टीचा समन्वय ठेवणारा आमचा मराठी भाषेचा अधिकारी असेल आणि म्हणून त्याच्यावर
ही अतिशय महत्त्वाची जबाबदारी भविष्याच्या कालावधीमध्ये प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये आम्ही घेणार आहोत. शेंद्रा बिड़किन इंडस्ट्रियल सेक्टर में कामकाज का जायज़ा लेने की गर्ज से रियासती वज़ीर सनत उदय सामंत ने एक अहम मीटिंग RX सिटी में गुज़िश्ता रोज़ तलब की. इस मीटिंग में जायज़ा लेने के बाद उन्होंने सनती तरक्की के लिए कई अहम फैसले किए. इस मीटिंग में छोटे सनतकारों को प्लॉट्स, मकामी नौजवानों को रोज़गार, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, ट्रक टर्मिनल और सनती सहूलतों से मुताल्लिक़ कई अहम फैसले किए गए. RX सिटी में मुनक़िदा इस मीटिंग के दौरान वज़ीर सनत उदय सामंत ने शेंद्रा बिड़किन सनती बस्ती में माइक्रो और छोटे सनतकारों को मुनसिफाना तरीके से प्लॉट फराहम करने की हिदायत दी. उन्होंने प्लॉट्स की कीमतों पर जल्द फैसला लेने और सनतों के लिए साजगार माहौल पैदा करने पर जोर दिया. इसके साथ ही एग्जीबिशन सेंटर के काम में तेज़ी लाने की भी हिदायत दी. इस मीटिंग में चिकलथाना, वालूद, शेंद्रा और बिड़किन सनती इलाकों में ट्रक टर्मिनल कायम करने, बिला ताअत्तुल बिजली की फराहमी और दीगर बुनियादी सहूलतों पर भी तबादला ख्याल हुआ. वज़ीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत के ताउन से सनती तंजीमें ट्रक टर्मिनल कायम करें. प्रोजेक्ट से मुतासरा किसानों के मसाइल पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई. उदय सामंत ने वाज़ेह किया कि शेंद्रा और बिड़किन के सनती मनसूबों में मकामी नौजवानों को रोज़गार में तरजीह दी जाएगी. इस मकसद के लिए टोयोटा किर्लोस्कर के ताउन से आलमी मेयार का स्किल डेवलपमेंट सेंटर कायम किया जाएगा. अलावा अज़ीम पुलिस स्टेशन के लिए ज़मीन मख्तस करने, मुतासरा किसानों के बकाया मुआवजे की अदायगी और DMIC के तहत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तामीर करने के भी मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत जारी की. छत्रपती संभाजीनगरच्या आजच्या दौऱ्यामध्ये ऑरिक्स सिटीचा आढावा राज्याचा उद्योगमंत्री म्हणून मी घेतला, MIDCचा देखील आढावा घेतला आणि 2-3 महत्त्वाचे निर्णय छत्रपती संभाजीनगरसाठी आम्ही आज जाहीर केले. त्याच्यामध्ये ऑरिक्स सिटीमध्ये 9 एकर जमीन ही क्रीडा संकुलासाठी आरक्षित करण्यात आलेली होती आणि क्रीडा संकुलाची आरक्षित जमीन ही वस्तीपासून लांब होती. त्यामुळे तिथल्या इंडस्ट्रीच्या लोकांनी, स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी, विशेषतः जे विलास बापू असतील, खासदार संदीपान भुमरे साहेब असतील, यांनी मागणी केली की ती मानवी वस्तीच्या जवळ असली पाहिजे, कारण मुलांना तिथे खेळायला जाणं, तिथे चांगल्या पद्धतीचं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर उभं करणं, यासाठी जागेचा बदलण्याचा आम्ही निर्णय घेतला. 9 एकरच्या ऐवजी 15 एकरमध्ये आता DMICच्या मार्फत हे क्रीडा संकुल उभारण्याचा आम्ही निर्णय घेतला आहे. त्याच्यासाठी कन्सल्टंट नेमण्याचा देखील निर्णय झाला आहे आणि पुढच्या 2 वर्षामध्ये हे छत्रपती संभाजीनगरसाठी औद्योगिक विकास क्षेत्रामध्ये फार मोठं क्रीडा संकुल त्या ठिकाणी निर्माण होईल. अजून आपल्याला एक माहिती आहे की आपण 50 एकर जमीन आंतरराष्ट्रीय एक्झिबिशन सेंटर त्यासाठी दिलेली होती आणि अनेक वर्षापासून मागणी होती की DMICमध्ये हे संकुल उभं करावं. त्याच्यामुळे त्याचा पार्ट 1 जो आहे त्याच्यासाठी आम्ही आता पैसे देतो आहे आणि त्या पैशामधनं पुढच्या 2 वर्षामध्ये एक्झिबिशन सेंटर उभं करण्याचा देखील निर्णय आम्ही त्या ठिकाणी घेतलेला आहे. अनेक रस्त्याला मंजुरी दिलेली आहेत. अनेक शेतकऱ्यांचे प्रश्न, उर्वरित प्रश्न जे होते ते सोडवण्याचा आम्ही निर्णय घेतलेला आहे. शहर के हिनानगर इलाके में छत पर खेल रहे एक मासूम बच्चे की इलेक्ट्रिक करंट लगने से मौत हो गई, जिसके सबब शहरियान में गम और गुस्सा पाया जा रहा है. ये अफसोसनाक वाक़या औरंगाबाद शहर के हिनानगर वार्ड नंबर 9 में पेश आया. बताया जाता है कि विश्व भारती स्कूल का तालिब इल्म शेख अमान बिजली की सप्लाई मुनक़ता होने के दौरान इमारत की छत पर खेल रहा था. ताहम अचानक बिजली की सप्लाई बहाल होने के बाद छत पर मौजूद बरक़ी तार से उसे ज़ोरदार झटका लगा, जिसके नतीजे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस हादसे के बाद हिनानगर इलाके में गम की लहर दौड़ गई है. वाक़े पर मकामी शहरियान में शदीद नाराज़गी पाई जा रही है और शहरियान ने महावितरण की मुबैना लापरवाही पर सवाल उठाते हुए ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है. भोकरदन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 किलो 780 ग्राम गांजा जब्त कर लिया और गांजे की स्मगलिंग करने के मामले में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ज़राए के मुताबिक इंस्पेक्टर किरण बड़वे को खुफिया इत्तला मिलने के बाद पुलिस टीम ने मालखेड़ा आकाना रोड पर नाकाबंदी की. इस दौरान एक मुश्तबा मोटरसाइकिल को रोकने की कोशिश की गई, मगर सवार फरार होने लगे. पुलिस ने ताक़ुब करके रामेश्वर महादू बावस्कर और सागर संतोष सोनने को गिरफ्तार कर लिया. तलाशी के दौरान उनके बैग से 10 किलो 780 ग्राम गांजा बरामद हुआ. इसके अलावा वारदात में इस्तेमाल होने वाली यामाहा FZ मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फ़ोन भी जब्त किए गए. पुलिस के मुताबिक दोनों मुलजिम पेशावर मुंशियात स्मगलर हैं और उनके खिलाफ
उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी मुकदमात दर्ज हैं। इस मामले में NDPS एक्ट 1985 के तहत केस दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। ये कार्रवाई पुलिस सुपरिंटेंडेंट तेजस्वी सिंह सिंधु की रहनुमाई में पुलिस इंस्पेक्टर किरण बड़वे की टीम ने अंजाम दी। ज़िला जालना के तालुका भोकरदन में ख़वातीन के एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की 9 लाख रुपयों की नकद रकम नामालूम चोर ले उड़े। ये मामला मुताल्लिका पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है और पुलिस को नामालूम चोरों की तलाश है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक तालुका भोकरदन के कोठा जहांगीर गांव की जय योगेश्वर महिला बचत गट की तकरीबन 10 खवातीन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भोकरदन शाख में ग्रुप की जमाशुदा रकम और खर्च की रकम निकालने के लिए आई थीं। दोपहर तकरीबन 3 बजे उन्होंने बैंक से 9 लाख रुपये नकद निकाले और गांव वापस रवाना हो गईं। रास्ते में जाफरा रोड पर वाक़े रतनमाला लॉन के करीब वो चाय पीने के लिए कुछ देर के लिए रुकीं। इस दौरान नकदी से भरा बैग महिंद्रा पिकअप गाड़ी में रखा हुआ था। जब खवातीन वापस गाड़ी के पास पहुंची तो देखा कि गाड़ी का शीशा तोड़ा जा चुका है और रकम से भरा बैग भी गायब है। अपनी मेहनत से जमा की गई लाखों रुपये की रकम चोरी होने का इल्म होते ही खवातीन ज़ार ख़तार रोने लगीं। मकामी शहरियान ने भी चोर को ढूंढने की कोशिश की मगर उस वक्त तक मुलजिम फरार हो चुका था। इत्तला मिलते ही सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर समेत पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आया बैंक से निकलने के बाद खवातीन का किसी ने ताक़ुब किया था या फिर बड़ी रकम निकालने की इत्तला पहले ही चोरों तक पहुंच चुकी थी। इसके अलावा इस वारदात के पीछे किसी पेशावर गैंग के मुलविस होने के इम्कान को भी नज़र में रखा जा रहा है। पुलिस ने बैंक से रतनमाला लॉन तक के रास्ते में नस्ब निजी इदारों के CCTV फुटेज अपने कब्जे में ले लिए हैं और मुश्तबा अफराद की नक़्ल हरकत का जायज़ा लिया जा रहा है। इस मामले की मज़ीद तफ्तीश भोकरदन पुलिस कर रही है। मालीवाड़ा प्रीमियर लीग टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का गुज़िश्ता रोज़ शानदार आगाज़ अमल में आया, जिसमें 20 टीमें शिरकत कर रही हैं। मालीवाड़ा प्रीमियर लीग के इफ्तिताह के मौके पर ऑर्गेनाइजर्स ने बताया कि टूर्नामेंट की फातिह टीम को 25,555 रुपये जबकि रनर अप टीम को 11,111 रुपये इनाम में दिए जाएंगे। इसके अलावा बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों के लिए खुसूसी इनामात भी रखे गए हैं। इफ्तिताही तकरीब में साबिक नायब सरपंच कड़ू कीर्तिकर, ग्राम पंचायत के अराकीन, समाजी कारकुनान, क्रिकेट शायकीन और बड़ी तादाद में मकामी शहरी मौजूद थे। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने खेलों के फ़रोग़ और नौजवानों में सेहतमंद मुकाबले के जज्बे को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। जोश खरोश से मनाया गया आज आषाढ़ी एकादशी का त्यौहार। शहर के सभी रास्ते चले विट्ठल रुक्मणी मंदिरों की तरफ। स्कूली तलबा ने भी निकाली दिंडियाँ और शहरियान को दिए नेक पैगामात। आखिरकार तलबा की ताकत के आगे मरकजी वजीर तालीम हुए झुकने पर मजबूर, दे दिया अपने ओहदे से इस्तीफा। अवाम ने किया इत्मीनान का इजहार। मारूफ कानूनदां एडवोकेट नवाब पटेल की तहरीर करदा 6 कानूनी किताबों का मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के हाथों शानदार इजरा, दानिश्वरों ने की सताइश। और रियासती वज़ीर सनत उदय सामंत ने किए शेंद्रा बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया के लिए कई बड़े फैसले। मकामी नौजवानों को रोजगार के लिए दी जाएगी तरजीह और छोटे सनतकारों को इंडस्ट्रियल प्लॉट्स फराहम करने का किया ऐलान। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।